students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is more fun with paint. Hello friends, in the previous class we have learned about the paint program to make beautiful drawings and color the pictures. तो previous class में हमने जाना था कि पेंट प्रोग्राम क्या होता है और कैसे हम इससे beautiful drawings बनाते हैं और उनमें कलर फिल करते हैं. What is MS Paint? Microsoft Paint is a software program of the Windows Accessories folder. It helps us to draw and color on the computer. We have already learned how to make simple drawings. Let us have a quick look at it again. Microsoft Paint एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हमें हेल्प करता है पिक्चर्स को ड्रॉ करने में और उनमें कलर्स फिल करने में. ठीक है, हमने इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में जाना है, लेकिन फिर भी एक क्विक रिकैप हम कर लेते हैं इस चैप्टर के थ्रू. स्टार्टिंग अ पेंट प्रोग्राम. फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू स्टार्ट पेंट प्रोग्राम. Click on Start button, click on All Programs, click on Accessories, click on Paint. So children, we will learn to know how to open Paint program. First you have to click on Start button. उसके बाद आपको All Programs पे जाना है. All Programs के बाद आपको Accessories पे जाना है. Accessories में आपको Paint का ऑप्शन नज़र आ जाएगा. आपको उस पर क्लिक करना है तो आपका पेंट प्रोग्राम विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी. Now, as soon as you click on Paint, the following window will appear on computer screen. Now, parts of the Paint window. The Paint window is divided into the following main parts. Title bar. The blue bar at the top of the Paint window is known as the title bar. It shows the program name and the file name. Quick Access toolbar. It contains the buttons to do common tasks such as save, undo, redo, etc. File tab, it contains the different options to work in Paint. Ribbon, the ribbon has two parts, tabs and groups. Tab, there are three. File, Home, View tabs in Paint window. Each tab contains tools arranged in different groups. Group, a group is a set of related commands. Seventh, drawing area. It is like a plain white paper. It is also known as canvas. This is the area in the middle where we draw and color. तो हम फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, पार्ट्स के बारे में जानते हैं पेंट विंडो के. सबसे पहला इसमें टाइटल बार होता है जिसमें आपके जो आपने पेंट का जिसमें आप काम कर रहे हो उसका टाइटल आपको इस पर नज़र आता है. देन आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है. इसमें आपके कुछ कमांड्स होती हैं जैसे कि सेव, अंडू, रीडू. फाइल टैब्स जो होती है ये आपने जो भी पेंट में वर्क किया है ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाता है. रिबन जो होता है इसके आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका टैब्स एंड दूसरा होता है आपका ग्रुप्स. तो टैब्स जो होते हैं इसमें भी आपके 3 टैब्स होते हैं. ठीक है, फाइल, होम एंड व्यू. और हर टैब में आपके टूल्स जो होते हैं कंटेन होते हैं जिनको अरेंज किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में. ग्रुप जो होते हैं ये आपके सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स होते हैं. ठीक है, एंड ड्राइंग एरिया आपको पता ही है जहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स को ड्रॉ एंड कलर करते हो, इसे हम कैनवास भी कहते हैं. यूजिंग द टूल्स ग्रुप. The tools group has many tools that have different functions. These tools help us in making drawings. Pencil tool. Pencil tool is used to draw freehand lines just as we do with a real pencil. Step 1, click on the Home tab. Step 2, click on the Pencil tool from the Tools group. Step 3, click on the size arrow and select the thickness for the pencil line. Step 4, select any color from the Colors group. Step 5, move the mouse pointer to the drawing area. Step 6, click and drag to draw a required shape. पेंसिल टूल के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, पेंसिल टूल जो है ये आपके ड्राइंग एरिया में, जैसे आप अपनी फाइल में ड्राइंग फाइल में ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, तो पेंसिल टूल भी उसी तरह का काम करता है. अब कैसे हमें इसे यूज़ करना है, कैसे हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं. सबसे पहले आप होम टैब पे जाएंगे, देन आप पेंसिल टूल पे क्लिक करेंगे,
टूल्स ग्रुप में से। देन आप उसकी साइज़ को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप उसकी थिकनेस ज़्यादा चाहते हैं तो आपको उसकी थिकनेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप चूज़ करेंगे कलर को। सपोज़ आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए अपने पेंसिल का, कोई दूसरा कलर चाहिए, तो आप कलर ग्रुप्स में से अपनी पेंसिल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप माउस पॉइंटर को मूव करेंगे अपने ड्राइंग एरिया में, जो आपका कैनवास एरिया है वहाँ पे आप मूव करेंगे। देन आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे रिक्वायर्ड शेप को ड्रॉ करने के लिए। टिप्स: To know the name of any tool, place the pointer on that tool. अब यहाँ पे आपको क्या दिया होता है, छोटे छोटे टूल्स दिए होते हैं, ठीक है। अगर आप उस टूल का नाम जानना चाहते हैं तो आप अपने पॉइंटर को सिंपली उस टूल के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको उस टूल का नाम जो है वो नज़र आ जाएगा, विजिबल हो जाएगा। Now let's move on to our next topic, which is fill with color tool. Fill with color tool is used for filling the picture with color. It is also known as paint bucket. Step 1, click on Home tab. Step 2, select the Fill with Color tool from the Tools group. Step 3, select any color from the Colors group to fill in the shapes. Step 4, move the pointer inside the shape and click the mouse. The color will be filled inside the shape. अब आपने कुछ भी ड्रॉ किया, सपोज अपनी आपने ड्राइंग फाइल में ड्रॉ किया है या आपने पेंट एरिया में ड्रॉ किया है, तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको उसमें कलर फिल करना है। तो यहाँ पे हमें कलर टूल ऑप्शन मिल जाता है, जिसे हम पेंट बकेट भी कहते हैं। इसको हम सेलेक्ट जब करते हैं तो इससे क्या करते हैं, हम अपनी पिक्चर में कलर फिल करते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको होम टैब में जाना है, देन आपको फिल विद कलर टूल को सेलेक्ट करना है, जो कि आपको टूल्स ग्रुप में ही मिल जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी कलर को सेलेक्ट करना है, जो कि आपके कलर ग्रुप में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे कलर के। इसमें से आप कलर को सेलेक्ट करेंगे जिसे आप फिल करना चाहते हैं। उसके बाद अपने पॉइंटर को लेके जाएंगे उस शेप के अंदर जहाँ पे आपको कलर फिल करना है। देन आप माउस पे क्लिक करेंगे तो आपका कलर जो है वो आपकी शेप के अंदर फिल हो जाएगा। रिमेंबर, while using fill with color tool, there should not be any gap in the outline of the picture. अब बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पे बताई गई है कि जब भी आप कलर फिल करेंगे तो आपका जो भी आपने ड्रॉ किया था, शेप कुछ भी आपने ड्रॉ की थी, उनके जो आउटलाइन है उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो कलर है वो आपके शेप के अंदर अच्छे से फिल नहीं होगा। इनफैक्ट क्या हो जाएगा, वो पूरा जो आपका ड्राइंग एरिया है उस पर कलर फिल हो जाएगा। Note: to erase drawings, select the eraser tool and move the cursor on the area that you want to erase. अब अपने प्रीवियस चैप्टर में भी ये जाना था कि कैसे हम इरेजर टूल को यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ आपसे गलती से ड्रॉ हो गई है, आप इरेजर टूल को यूज़ करके उस मिस्टेक को रब कर सकते हैं। यूजिंग द कलर्स ग्रुप, इन द रिबन यू विल सी 2 buttons called colors 1 and color 2. Color 1, it is the foreground color. It is used when you draw or color using the left mouse button. First, click on color 1 and select the desired color green from the colors group. Now draw a rectangle. You will see that a rectangle with green outline will be drawn on the screen. अब यहाँ पे कलर ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। रिबन में आप देखोगे आपको 2 बटन्स नज़र आते हैं, कलर 1 एंड कलर 2। तो कलर 1 के बारे में हम जान लेते हैं। ये फोरग्राउंड कलर कहलाता है, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं जब हमें ड्रॉ या फिर कलर करना होता है लेफ़्ट माउस बटन से, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आप कलर 1 पे क्लिक करेंगे, देन आप सेलेक्ट करेंगे डिज़ायर्ड कलर को। यहाँ पे हमने ग्रीन कलर को सेलेक्ट किया है कलर्स ग्रुप पे। नाउ आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो आपने कलर सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो आपका जो रेक्टेंगल है वो ग्रीन कलर की आउटलाइन से क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलर 2. It is the background color. It is used when you draw the color using the right mouse button. Click on colors 2 and click on red color in the colors group. Now point inside the rectangle and right click. Red color will be filled inside the rectangle. अब कलर 2 जो है ये आपका बैकग्राउंड कलर कहलाता है और इसे हम यूज़ करते हैं ड्रॉ एंड कलर करने के लिए। कब? जब हम अपना राइट माउस बटन यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है,
कलर 2 पे क्लिक करना है, देन आपको रेड कलर को चूज करना है। पहले हमने कलर 1 के लिए ग्रीन कलर चूज किया था, देन कलर 2 के लिए आपको रेड कलर को चूज करना है कलर ग्रुप्स में से। उसके बाद आप पॉइंट करेंगे इनसाइड द रेक्टेंगल, जो आपने ग्रीन कलर का पहले रेक्टेंगल बनाया था उसके अंदर आप पॉइंट करेंगे, देन आप राइट क्लिक करेंगे। आपको लेफ्ट क्लिक नहीं करना, लेफ्ट क्लिक आप करेंगे कलर 1 के लिए, राइट क्लिक करेंगे आप कलर 2 के लिए। तो आप देखेंगे आपका जो रेड कलर है वो आपके रेक्टेंगल के अंदर फिल हो जाएगा। रिमेंबर, if you click on color 2 and then select any color and click the left mouse button inside the shape, then the color present in color 1 will fill inside the shape। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात हमें बताई गई है। अगर आप सपोज कलर 2 भी सिलेक्ट कर लेते हैं, आप कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आप शेप के अंदर जा करके लेफ्ट बटन को, राइट क्लिक की जगह आप लेफ्ट क्लिक कर लेंगे बटन को, तो आपका जो पहले आपने कलर 1 पे जो कलर सेलेक्ट किया था वही कलर आपके शेप के अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, सपोज आपने रेड कलर सेलेक्ट किया था लेकिन आपने गलती से लेफ्ट बटन दबा दिया, तो आपने जो पहले कलर 1 में सेलेक्ट किया था कलर ग्रीन कलर, वो आपके शेप के अंदर फिल हो जाएगा, ना कि रेड कलर। Using the shapes tool, let's learn about some tools of shapes group. Curve tool. The curve tool is used to draw smooth curved lines. Step 1, click on Home tab. Step 2, click on Curve tools. Step 3, select a color and the required thickness. Step 4, drag the pointer to draw a line. Step 5, click on the line where you want the curve and draw to make the line. You can repeat step 5 once more to give another curve to the line. अब कर्व टूल जो होता है ये हम कर्व को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले होम टैब पे हम जाएंगे, देन हम कर्व टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कलर को सेलेक्ट करेंगे और उसकी थिकनेस को भी हम सेलेक्ट करेंगे, कितना थिकनेस हमें हमारी लाइन का चाहिए। उसके बाद हम ड्रैग करेंगे पॉइंटर को ताकि हम लाइन ड्रॉ कर सकें। ठीक है, उसके बाद आपको लाइन पे क्लिक करना है जहाँ पे आप चाहते हैं कर्व को बनाना। उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे टू मेक द लाइन। इस स्टेप को, जो स्टेप 5 है, इसे आप रिपीट कर सकते हैं काफ़ी टाइम। ठीक है, एक के बाद एक आप इसे रिपीट कर सकते हैं ताकि आप और कर्व लाइंस को ड्रॉ कर सकें। टिप, अ कर्व कैन बी मॉडिफाइड ओनली 2 टाइम्स। एक कर्व को आप सिर्फ 2 टाइम ही मॉडिफाई कर सकते हो। Now polygon tool. A polygon is a closed shape made up of straight lines. Let us use the polygon tools of shapes group to draw a polygon. Step 1, on the home tab, click on the polygon tool. Step 2, select a line size and color for the colors group. Step 3, move the pointer to the drawing area and drag to draw a straight line AB. Step 4, then click at different pointed to create more sides. Step 5, in the end, click at the initial point to close the shape. Polygons को ड्रॉ करने के लिए हम पॉलीगन टूल को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले होम टैब पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद हमें पॉलीगन टूल पे क्लिक करना है, देन हमें लाइन साइज को सिलेक्ट करना है और कलर को भी सिलेक्ट करना है कलर्स ग्रुप में से। फिर आपको पॉइंटर को मूव करके लेके जाना है ड्राइंग एरिया पे, देन आपको एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है फ्रॉम ए टू बी, या ए बी एक लाइन को आपको ड्रॉ करना है। देन आपको क्लिक करना है डिफरेंट पॉइंट टू क्रिएट मोर साइड्स। अब आपको डिफरेंट जो पॉइंट्स दिए गए हैं वहाँ पे आपको क्लिक करते जाना है ताकि आप मोर साइड्स को क्रिएट कर सकें। उसके बाद एंड में आपको क्लिक करना है इनिशियल पॉइंट में ताकि आप उस शेप को क्या कर सको, क्लोज कर सको। टेक्स्ट टूल. Text tool is used to type the text or message in our drawings. Step 1, click on the Home tab. Step 2, in the Tools group, click on the Text tool. Step 3, drag the pointer in the drawing area. A box with a dotted outline will appear with a cursor blinking inside. Step 4, type your text in the box. अब हम क्या करते हैं, कभी कभी जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें उसे हेडिंग देनी होती है, कुछ टॉपिक देना होता है, कुछ भी उसमें लिखना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल को अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल में अगर आपको कोई भी टेक्स्ट वहाँ पे ऐड करना है तो इसे हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें होम टैब पे जाना है, देन आपको टूल्स ग्रुप में क्लिक करना है टेक्स्ट टूल पे,
फिर आपको पॉइंटर को ड्रैग करके लेके जाना है ड्राइंग एरिया पे। आपके सामने एक डॉटेड बॉक्स जो है वो ब्लिंक हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, उसी कर्सर से आपको अपना टेक्स्ट को टाइप करना है, ठीक है। और फिर आप देखोगे आपका टेक्स्ट जो है वो वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। Saving the drawing. To save a drawing means to store it permanently in the computer. It is important to save our work in between so that we do not lose it in case of power failure. Step 1. Draw any picture in Paint. Step 2. Click on the File tab. Step 3. From the menu that appears, click on the Save option. The Save as window appears. Step 4. Type a name in the file name box. Step 5. Click on the Save button. Now our drawing is saved in the computer. Tip: Control plus S is the shortcut to save a drawing. अब आपने काम कर लिया, आपने ड्राइंग बना ली अच्छी अच्छी, और आपने शेप्स वगैरह ड्रॉ कर लिया, टेक्स्ट भी वहाँ पे ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना है, अपनी ड्राइंग को सेव करना है। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने पिक्चर ड्रॉ करी पेंट में, देन आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, मेन्यू जो होगा आपके सामने अपीयर हो जाएगा, उस मेन्यू में से आपको सेव ऑप्शन को क्लिक करना है। सेव एज विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम देना होगा, ठीक है। सपोज आपने कोई कार्ड बनाया है, या आपने कोई मदर्स डे पे कोई भी चीज़ बनाई है, ड्राइंग बनाई है, नेचर के ऊपर कोई भी ड्राइंग बनाई है, तो आप उसको एक प्रॉपर नाम देंगे, ठीक है। तो ये आप टाइप करेंगे फाइल नेम बॉक्स पे, उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो ड्राइंग है वो आपके कंप्यूटर में जो भी आपने नाम दिया था उस नाम से वो सेव हो जाएगी। अब आप इसे शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको कंट्रोल प्लस एस जो होता है आपके कीबोर्ड पे, वो आपको प्रेस करना है, तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। लेट अस रिवाइंड। Paint is a program of the accessories folder used to draw and color. The Paint window is divided into title bar, quick access toolbar, ribbon, tab, group and drawing area. Text tool is used for typing text or message. Curve tool is used for drawing curved lines. A polygon tool is used to draw polygons. Color 1 is the foreground color and color 2 is the foreground color. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.